Good morning, Hirak Tiwari. Your voice is not audible, Hirak. Arnav Pinge, good morning. Morning, sir. Good morning, Srushti. Good Arnav, good morning, sir. morning. Good morning, sir. Dhanshri, good morning, Arnav. Dhanshri, good morning. Dhanshri, good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Yes, Dhanshri, where is Kunjal Didi right now? Good morning, sir. Nanded. Where is Kunjal? Sir, Nanded. Nanded. Yes, sir. So she has opted which subject, beta? Mathematics or biology science? Science. Mathematics or biology? Biology, sir. Biology. Okay. So first she is going for डॉक्टर और फिजिशियन है ना? Yes, sir. चलिए चलिए ठीक है ठीक है. Good morning. Very good. Good morning beta. Just wait for a second. Let me take out the textbook. Yes, we're doing on this chapter. अच्छा, dear friends, before commencing on this chapter, I have already sent the notes today morning of history chapter 1. Okay, is it clear? Good morning, sir. Good morning. I have today morning I have sent the notes of history chapter 1. Okay? Yes, sir. Yes, sir. In teachment, yes, sir. I have sent the notes on WhatsApp also, as well as on teachment, sir. ठीक है. So all of you please try to open the notes in Teachment app also. Okay, because I am planning to conduct your examination on Teachment app. ठीक है, आप लोगों के जो एग्जाम होंगे मैं प्लान कर रहा हूं कि वो किस पर भेजूंगा, क्वेश्चन पेपर टीचमेंट पर. ठीक है, ताकि आप लोगों की आंसर शीट्स क्या हो वहां पर सेव हो जाए. इज इट क्लियर? अभी हमारे पास 8-10 दिन है. हम अपना जो भी एक्सपेरिमेंटेशन है वो टीचमेंट पर कर सकते हैं कि हाउ डज इट वर्क, है ना. यदि ये अच्छे से काम करेगा देन we'll take exam on Teachment. If on otherwise, I will send the link for Google Classroom. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज जो है उसको टीचमेंट ऐप पर ओपन करके देखना कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है ना. वुड यू बी एबल टू सी इट प्रॉपरली या और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? इज इट क्लियर? Yes, sir. मेरी Yes, कहीं sir. कहीं बात आई समझ में? Yes, sir. I opened that in the morning before joining the class, but I think you send a PDF of the chapter, sir. Okay, so what is happening? Is the PDF is not opening? Sir, the PDF is opening. You send the PDF of the test book, not the question and answer in Teachment. Very good. Thank you, है ना. So it means there was a problem somewhere from my side. ठीक है. So मैं उस असाइनमेंट को, स्टडी मटेरियल को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि क्या है कि वो जो क्वेश्चन आंसर की फाइल थी ना उस पे भी नाम मैंने क्या लिख रखा था, हिस्ट्री चैप्टर 1. सो जब मैं अटैचमेंट करने गया है ना तो क्या हो गया होगा कि चैप्टर क्वेश्चन आंसर की फाइल के बजाय कौन सी फाइल चली गई? चैप्टर PDF chapter. चैप्टर का PDF चला गया है ना. ठीक है, थैंक यू बेटा फॉर इन्फॉर्मिंग मी. सो
आई विल सेंड द पीडीएफ। अच्छा, और जो उसमें क्वेश्चन आंसर्स में जो गया है व्हाट्सएप में, वो क्या आया है? Sir, that is correct. That is question and answers only. दैट इज ओके, ठीक है ना? तो आप लोग अभी क्वेश्चन आंसर जो है उस पीडीएफ से कर लो, व्हाट्सएप से, है ना? मैं इसमें चैप्टर का पीडीएफ इसमें भेजने की कोशिश करता हूँ टीचमेंट पे, ठीक है? चलिए, थैंक्स बेटा, है ना? सो ये सारे इंटरेक्शन हम करते रहेंगे सो दैट वी विल इम्प्रूव अवर एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है? सो थैंक यू स्टूडेंट्स। Just a minute. Okay. Good. So, shall we now start our chapter? Yes, sir. Yes. Very good. Very good. Very Yes, sir. Very good. So, just let me go for the screen sharing first. Well, is the textbook visible, beta? No, Yes, sir. Yes, Visible. sir. Visible. Visible, sir. There I will. Thank you. So, just let me take you people to the section where we have completed. I think we were somewhere this one. We might have completed this section. And this was the last point that we discussed in yesterday's live class. Is it so? Hello? Yes, sir. हाँ, ये वाला शायद हमारा लास्ट पॉइंट था जो हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था, है ना? Yes, sir. So, this gives us a clear but minimal understanding of democracy. वो जो entire discussion कल हमने किया, है ना? अब वो क्या बता रहा था? It gives us a clear but minimal understanding of democracy. ठीक है? इसका क्या मतलब है कि वो जो entire Sir? हाँ, Sir, we were discussing on next page that ideal seriously one. just a minute. This one? No, sir. That side, right side. Right side paragraph. This one? About ideal democracy, sir. Okay, correct, ठीक है. Thank you बेटा, है ना? चलिए. So, I think we were somewhere this one, okay? I forgot that. Thanks for remembering me, beta. Okay, so let us work out. So if we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy, है ना? Yet an understanding of democracy is an ideal. Remind us why we value democracy. ये वाला कहीं हो गया था. चलिए. So यहाँ पर थे हम कहीं पर. Are we at this section? Hello. Yes, Yes, sir. sir. हम लोग इस सेक्शन पर कहीं थे. Yes, sir. Somewhere here only. चलिए, ठीक है. Light lover. So, an understanding of democracy as an ideal reminds us why we value democracy. यानी डेमोक्रेसी को हम एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में कंसीडर करें, तो उसके जरिए हमें ये पता चलता है कि why we value democracy. डेमोक्रेसी का
इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. हाँ, और यहाँ पर हम लोग कल वो वाला एग्जाम्पल ले रहे थे, यदि आप लोगों को ध्यान हो। वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ 100% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, है ना? Yes, sir. We were taking the example of 100% marks in examination. हमने कहीं पर 100% मार्क्स वाला एग्जामिनेशन देखा था, ठीक? So it enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. तो जब हम क्या करते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को किससे कंपेयर करते हैं? आइडियल डेमोक्रेसी से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? हम किससे कंपेयर करते हैं? Ideal democracy. Ideal democracy. जब हम आइडियल डेमोक्रेसी से कंपेयर करेंगे, जब हम किससे कंपेयर करेंगे? Ideal democracy. Ideal democracy. Ideal democracy. Then we are able to understand the importance of, then we are able to understand the importance of our democracy, है ना? जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिया था कि what are the maximum marks could be achieved? बेंचमार्क क्या है एग्जामिनेशन में? 90% है या 100% है? 100%. 100%. बेंचमार्क है ना? तो 100% हमारा बेंचमार्क है, परंतु क्या 95%, 97% गलत गंदे नंबर हैं? No, sir. No, sir. Okay. वो वाला एग्जाम्पल हमने कल इस कॉन्टेक्स्ट में क्या किया था? डिस्कस किया था। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now, so this Yes, entire sir. discussion helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. ठीक है? तो वो जो entire discussion है, वो हमें इस बात में मदद करता है कि मिनिमल डेमोक्रेसी यानी मिनिमम क्या कंडीशन है जहां पर हम क्या हो सकते हैं? सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है? सो इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपांडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है? इस टेक्स्ट बुक में ना, इस टेक्स्ट बुक में मतलब इस साल क्लास 9th में, कहां पर? क्लास 9th में। तो क्लास 9th में इस साल हम डेमोक्रेसी के बारे में इतना आगे तक डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है? ये डिस्कशन हमारा कौन सी क्लास में होगा? 10th स्टैंडर्ड में। किस स्टैंडर्ड में? 10th standard. When we will study the same subject, है ना, civics, that is democratic politics in standard 10, तो वहां पर हम इस expanded notion of democracy यानी डेमोक्रेसी के डिफरेंट आइडियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। आवर फोकस हियर मतलब 9th क्लास में। कहां पर? 9th class. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. यानी 9th स्टैंडर्ड में जो ओवरऑल 5 चैप्टर हम पढ़ेंगे, है ना, ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, 4 चैप्टर्स मोर आर लेफ्ट। तो अभी 9th स्टैंडर्ड में हम डेमोक्रेसी के अदर एस्पेक्ट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। इस साल हमारा डिस्कशन ओनली किसके ऊपर बेस्ड होगा? डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ
Government. गवर्नमेंट, यानी Democracy है। एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी किस प्रकार काम करती है। इतनी बात आई समझ में? हम इस चीज पर, इस बात पर क्या करेंगे, इस पूरे कमिंग 4 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी को एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेट करने में कौन कौन से एस्पेक्ट्स, कौन कौन सी बातें शामिल हैं। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट द कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स। कोर इंस्टीट्यूशनल, ना कोर का मतलब होता है मुख्य बातें, कोर का मतलब मुख्य बातें। सर, मेन फीचर्स। सर जो भी इस टेक्स्ट बुक में, सॉरी इस चैप्टर में जो भी जैसे जो भी डेफिनेशन बीच बीच में आई है उनको सब मिलाकर ये हमें इस चैप्टर का डेफिनेशन मिल जाएगा पूरा, एक सारे डेफिनेशन मिलाकर। देखो हमारी शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर कहाँ से हुआ था? संध्या बेटा, हमने अपने इस चैप्टर का डिस्कशन किस चीज से शुरू किया था? डेमोक्रेसी इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हाँ, हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी ना? यस सर। वेरी गुड। फिर हमने क्या किया था? अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़े थे। यस सर। वेरी गुड। जब हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, है ना बेटा, तो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट की हमें केस स्टडीज मिली थी। जैसे सऊदी अरेबिया का केस था, जिम्बाब्वे का केस था, वी हैड ए केस फ्रॉम चाइना, वी हैड ए केस फ्रॉम मैक्सिको, थे ना? यस सर। We had a case from Pakistan also, and from each of the example or case study, वो जो अलग अलग एग्जाम्पल्स और केस स्टडी थे उसके हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया था? What we have detected? We have detected the different features of democracy. हमने क्या डिटेक्ट किया था? ओके सर, फीचर्स। डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वो वाला जब सेक्शन कंप्लीट हो गया तो हमारे पास में कितने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आए थे बेटा? 5। पहला तो हमारा स्टार्टिंग की डेफिनेशन और बाकी के 4 फीचर्स निकाले थे हमने। यस सर। अब उन्हीं 4 फीचर्स को लास्ट में कंक्लूजन के फॉर्म में क्या कर दिया था? एक कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तार पूर्वक एक सिंगल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हमने डेवलप करी थी। वो 5 फीचर्स की मदद से क्या डेवलप हो गई थी? एक सिंगल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जस्ट मैंने देखो, परवेज मुशर्रफ का एग्जाम्पल लिया था, सऊदी अरब का लिया था, और ये एक एक करके हमारे पास में सिंगल सिंगल फीचर आए थे। यस सर। गुड। अब वो सारे सिंगल फीचर्स को हमने क्या कर दिया था? कंबाइन कर दिया था। हाँ, तो जब हमने वो सारे फीचर्स कंपाइल कर दिए, देन व्हाट वी गॉट? We got a one single comprehensive definition of democracy. ये आ गई थी हमारी। यस सर। हाँ, अभी comprehensive definition क्या हो गई थी? Democracy is a form of government in which, ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट तो हमारा क्या था? ये वाली हमारी सिंपल डेमोक्रेटिक सैंपल डेफिनेशन थी। यस सर। मतलब इसी डेफिनेशन के फीचर्स सारे लिखे गए समरी के तौर पर।
भाई हाँ भाई, अपन ने उतना लंबा सब डिस्कशन किया ना, यस सर। अपन ने 4 या 5 पेज का डिस्कशन किया था, और उस डिस्कशन के बाद में हमें एक सिंगल समरी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी मिली। यस सर। हाँ, तो वो समरी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या आई? यही आई ना कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ये क्या है, हमारी सिंपल डेफिनेशन थी। फिर उसी में सेकंड पॉइंट ऐड हो गया कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस। ऐसे करके हमारी क्या बन गई, एक कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ, हमारी क्या बनी, एक कंप्लीट डेफिनेशन, समरी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी बनी। कितनी बात आई समझ में? यस सर। ठीक, अब ये हो गया हमारा एक सेक्शन कंप्लीट। फिर हमने किसके बारे में डिस्कशन किया, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी किया था। यस सर। फिर उस आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में हमें डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या मिले, बहुत सारे आर्गुमेंट्स मिले, डिस्कस हुआ था। यस सर। ठीक, फिर उसके बाद हमने और क्या डिस्कस किया, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बाद हमने क्या डिस्कस किया था, आर्गुमेंट्स ऑन डेमोक्रेसी, और यानी इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद में दोनों को कंप्लीट करके हमने अब इस बात पर डिस्कशन शुरू किया कि एज ए आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कितना सक्सेसफुल है या कितना सक्सेसफुल नहीं है। इतनी बात आई समझ में? यस सर। ठीक, Yes. so this is how the entire chapter runs. संध्या क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, so next year we will read more about a democratic society, and then we have the base of evaluating our democracy. At this stage, we just need to note that democracy can apply to many sphere of life. अभी सिर्फ हम at this stage मतलब अभी फिलहाल में हम इतना समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्फेयर्स ऑफ लाइफ, यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर क्या हो सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा लाइफ के और एरियाज में भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। इट मींस दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स। डेमोक्रेसी बहुत अलग अलग तरीकों से ह्यूमन लाइफ को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। So there can be various ways of taking decision in a democratic manner. ठीक है, डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होगी, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, उसमें भी क्या हो सकते हैं, वेरियस वेज हो सकते हैं। ठीक, एज लॉन्ग एज the basic principle of consultation on equal basis is accepted, यानी डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके से क्या कर सकती है, डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके से क्या कर सकती है, काम कर सकती है। रिप्लाई है ना, यानी अब ये वाला जो पॉइंट है, there can be various ways of taking decision in a democratic manner as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted.
अभी ये पॉइंट बेसिकली ये कह रहा है कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज अपने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अलग अलग तरीकों से क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से इंडिया ने डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप किया, जरूरी नहीं है कि वैसा का वैसा डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में। ठीक, इंडिया में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने का तरीका अलग हो सकता है, अमेरिका में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, यानी डेमोक्रेसी हैव द डिफरेंट वेज टू टेक डिसीजन। ठीक, सिर्फ उसमें कौन सी बात इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन। अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसी वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये एडॉप्शन कैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन मतलब आप डेमोक्रेसी कैसे भी बनाएं, मेन चीज उसमें क्या होनी चाहिए कि उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कंसल्टेशन, डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए, सभी लोगों की मंजूरी से डिसीजन होना चाहिए। ठीक, एज लॉन्ग एज एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड। और वो डिसीजन कैसा होगा, इक्वल बेसिस पर होगा। कैसा होगा, इक्वल बेसिस। आप ध्यान से सुनना, ये वाला जो पॉइंट है ये हम नेक्स्ट ईयर चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 1। नेक्स्ट ईयर जब हम स्टैंडर्ड 10th में पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, द नेम ऑफ द चैप्टर इज पावर शेयरिंग, तो वहां हम इस चीज को पढ़ेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से डिफरेंट तरीकों से, अलग अलग तरीकों से अपने कंट्रीज में क्या फॉलो करती हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती हैं। तो वहां हमको डिस्कस करने को मिलेगा कि इंडिया में हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक अलग तरीके से बनाई, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दूसरे तरीके से बनाई। इतनी बात आई समझ में? यस सर। So now shall we proceed to the next point? यस सर। Good. The most common form of democracy in today's world is through people's elected representative, है ना? Most common form of democracy यानी वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें से मैक्सिमम में रूल यानी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किसके जरिए होता है, थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 3। बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल, देयर कैन बी सम अदर वेज also to take the democratic decision। यानी यदि कंट्री स्मॉल है, छोटी सी कम्युनिटी है, तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा और भी अन्य दूसरे तरीके हो सकते हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल all the people can sit together and take decision directly। जैसे सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
यस सानिका, क्या कर सकते हैं? यस समवन रिप्लाई। डायरेक्ट डिसीजन। हाँ, मैं रिप्लाई इसलिए मांगता रहता हूँ क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, नेटवर्क लॉस हो जाता है और यहाँ दिखाई दे रहा है ना? तो कल ऐसा हो गया था। हाँ सर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जैसे एक बुक है, मतलब उसमें आर्टिकल सब कुछ लिखा है, तो ऐसे डेमोक्रेटिक की भी कोई बुक है, मतलब उसमें सब कुछ लिखा है, एक्यूरेट की कैसी होनी चाहिए? नहीं बेटा, देखो वही तो बात है कि डेमोक्रेसी किस तरीके से अडॉप्ट करें, ये अलग अलग कंट्रीज के हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। हमने कहीं देखा था ना, ये पढ़ा था कि विच कंट्रीज हैव अडॉप्टेड विच वे, वो किस पर डिपेंड करता है? उस कंट्री के हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने ऊपर की एक लाइन पढ़ी थी ना, क्या पढ़ा था? देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटिक मैनर, यानी डेमोक्रेसी को किस तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं का क्या मतलब है कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने का कोई फिक्स तरीका नहीं है। नहीं है। अब कोई फिक्स तरीका नहीं है तो उसकी कोई सेपरेट बुक तो होगी नहीं कि ऐसा लिख दिया ऐसे ही होना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ इट? यस सर। Yes, sir. हाँ, पर उसका बेसिक फंडामेंटल वही होना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल क्या होना चाहिए? बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन एंड इक्वल बेसिस। अब प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सभी लोगों की मंजूरी शामिल होगी। प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन मतलब डिसीजन मेकिंग में सभी लोगों की मंजूरी क्या होनी चाहिए? शामिल होनी चाहिए। शामिल होना चाहिए। और कैसे? इक्वली बेसिस। इक्वल बेसिस, डेमोक्रेटिक मैनर। तो डेमोक्रेटिक मैनर क्या है? डिसीजन मेकिंग में सभी लोगों की मंजूरी होगी, किसके बेस पर? इक्वल बेसिस पर। अब ये हो गया हमारा मेन स्टेम ऑफ डेमोक्रेसी। क्या हो गया? मेन स्टेम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, अब चाहे आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी लो कि सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के डिसीजन लो, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लो कि रिप्रेजेंटेटिव के जरिए डिसीजन लो। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन वही बात कर रहे थे, ठीक, कि देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। फॉर एग्जांपल ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली। जैसे हमारे पास में कम्युनिटी स्मॉल है, ये बोल रहे हैं ना, इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल, जैसे हम हमारी क्लास की बात करें, as you can see on the screen, how many participants are right now joined the teachment? अभी कितने हैं हमारे पास? 51. तो हमारी कम्युनिटी स्मॉल है कि बिग है? स्मॉल। स्मॉल है। अच्छा, ऑनलाइन मोड के जरिए हम सभी लोग ज्वाइन हैं या नहीं है? है सर। तो हमारी इस स्मॉल कम्युनिटी को मान लो कोई एक डिसीजन लेना है कि जैसे आपका जो कमिंग एग्जामिनेशन है 30 मार्क्स का, तो वो पूरा का पूरा हम ऑब्जेक्टिव बेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्टिव है ना। अब उस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर में चूंकि 30 मार्क्स का एग्जाम है, तो एक ऑब्जेक्टिव हाफ मार्क्स का कर दें तो टोटल 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर सकते हैं? 60 है ना। तो ये बताओ कि क्या ऐसा करना सही है या गलत है? सर ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहिए, वेरी गुड।
अच्छा कार्तिकेय, क्वेश्चन पेपर कैसा सेट कर लें अपन? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे होंगे या सब्जेक्टिव ज्यादा ऑब्जेक्टिव ज्यादा बेटर है? अगर सब ऑब्जेक्टिव होंगे तो इजीली सबके सबको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। किसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे? सर एग्जाम में। अरे एग्जाम में तो मार्क्स मिलेंगे, पर सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव। अच्छा सर शुभम ऑब्जेक्टिव में ज्यादा मिलेंगे। बोथ शुड बी इन इक्वल अमाउंट। both should be in equal number, है ना? और अर्नव? यस सर। परंतु सीबीएसई बोर्ड तो ये बोल रहा है कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है, जिसको टर्म 1 एग्जाम बोला, तो टर्म 1 एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी सीबीएसई ने नया पैटर्न दे दिया है, आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम? सर मुझे यस सर। अच्छा, यस तो उसमें जो हाफ ईयरली यानी टर्म 1 एग्जाम होगा वो कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेस्ड। हाँ, ओजस्वी ये बताओ क्या उससे लिखने की लिंक टूट जाएगी। हाँ सर लिखने की लिंक टूट जाएगी उससे। लिखने की जो हैबिट है, लिंक है, वो टूट जाएगी, है ना? बराबर? सर ऐसा क्यों हो गया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे? हाँ सर ऐसा क्यों हो गया कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आएंगे ज्यादा? बेटा एक्चुअल में क्या है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है ना, इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम में बुला करके और एग्जाम लिखवाना तो पॉसिबल है नहीं। हेल्थ इश्यू और बाकी के प्रॉब्लम आ रहे हैं ना। और अब यदि ऑनलाइन एग्जाम लेना है तो बच्चा घर पे बैठ के लिखेगा, और बच्चा जब घर के बैठ करके लिख रहा है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो आंसर है वो गूगल बाबा की मदद से ढूंढ करके लिखे जा रहे हैं। अनुने ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? अनुने ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर हो रहा है। हाँ, इसलिए बोर्ड क्या चाहता है? एमसीक्यू हो और उसमें कोई कॉपी पेस्ट ना हो। हाँ ठीक है, तो अब बताओ कि क्या करना चाहिए? सर एमसीक्यू इज समवॉट बेटर इन दिस सिचुएशन। गुड। अब नाउ आई एम स्टॉपिंग। अभी ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अभी जब हमने इतनी देर इस क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर बातचीत करी, चैतन्य माइक बंद करो। इतनी देर जब हमने पैटर्न पर बात करी तो आपने ध्यान दिया कि हम बेसिकली कर क्या रहे थे? हमारी कम्युनिटी कैसी थी? स्मॉल कम्युनिटी थी। और इस कम्युनिटी में क्या हो रहा है? ऑल द पीपल आर सिटिंग their decision and discussing. भाई अपन सारे 51 लोग एक साथ इकट्ठे हैं कि नहीं है? यस सर। yes sir Yes, sir. फिजिकली एक साथ नहीं बैठे हैं, बट इस डिसीजन मेकिंग हम क्या कर रहे हैं? एग्जाम कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना, पेपर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, व्हाट आर वी डूइंग? डिस्कसिंग एंड टेकिंग डिसीजन। Discussing and taking decision. Okay, but what is happening? Are all the people involved? No, sir. no sir अरे चलो, कुछ लोग चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ लोग चुपचाप सुन रहे हैं, पर हैं तो सब। हाँ सर सब है, पर लोग चुप है। Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, हम लोग इतनी देर जो विचार विमर्श कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? कंसल्टेशन किया या नहीं किया? यस सर। अच्छा, ये कंसल्टेशन करने के लिए हमने सभी को इक्वल बेसिस पर मौका दिया या नहीं दिया? सर दिया। दिया है। हमने यदि इक्वल बेसिस पर मौका दिया
तो हम किस प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं? डेमोक्रेटिक डिसीजन। Democratic decision. और इस Democratic डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन में क्या हो रहा है? ऑल द पीपल आर सिटिंग टुगेदर। यस सर। ऑल द पीपल आर Yes, सिटिंग sir. टुगेदर। कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो उसकी आलसी है। हो सकता है ओजस्वी आसवाले ऑनलाइन होकर के नाश्ता कर रही हो, परंतु एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने क्या किया? हमने सभी को मौका दिया Equal rights दिए। यस सर। इक्वल राइट। सर ये इक्वल बेसिस पे सबको देना यही डेमोक्रेटिक का बेसिक प्रिंसिपल है विच वी आर फॉलोइंग। हाँ, विच वी आर फॉलोइंग। अब इसमें क्या हो रहा है? या तो मैं दो लोगों से बात कर लेता कि भैया अर्नव ऑनलाइन रहता है, धनश्री ऑनलाइन रहती है, संध्या ऑनलाइन रहती है, तो बाकियों को छोड़ो, मैं इन 3 लोगों से ही बात कर लेता हूँ। यदि मैं इन 3 लोगों से ही बात करता, तो उस स्थिति में वो कंडीशन क्या होती? नॉन डेमोक्रेटिक डिसीजन। डेमोक्रेटिक होती, परंतु मैं किससे बात कर रहा हूँ अभी? ओनली 3 people, not on equal basis. They could be considered as what? Elected representative. Representative। समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. तो मैं यदि ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात करता तो वो भी डेमोक्रेसी होती, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑल आर We सिटिंग are taking people also as for decision. यानी यहाँ पर सारे लोग शामिल हैं। जब सारे लोग शामिल हैं तो डिसीजन कैसा हो गया? डायरेक्ट डिसीजन हो गया। कैसा हो गया? Direct Direct decision. ठीक है, इसलिए डेमोक्रेसी को 2 तरीके से कंसीडर किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है indirect. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यदि मैं अभी जो हम लोग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? Direct. Direct। और यदि सिर्फ 4 या 5 लोगों को मैं चुन लेता या पूरी क्लास से बोलता कि भैया मेरे को क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करना है, तुम लोग 5 लोगों के नाम दे दो, मैं उनसे डिस्कस करके फाइनल कर देता हूँ, तो वो कंडीशन क्या हो जाती? Indirect. सर इस समय सिर्फ गवर्नमेंट इनडायरेक्ट ही करती है, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात करती है ना? हाँ ना, क्योंकि क्या है, चौहान सर ने टीचमेंट ऐप ऑन किया। यस सर। 51 पार्टिसिपेंट जोड़ लिए। यस सर। इतने लोगों से बातचीत करना मेरे को इजी था, तो सबकी बात मैं सुन पाया और मेरी बात तुम सुन पाए। परंतु यदि स्मॉल पार्टिसिपेंट्स, वही तो बात थी ना, अपन ने क्या डिस्कस किया था? इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल कम्युनिटी, घूम फिर के बात वही आ जाती है। नहीं, बात वही आ जाती है, पर बात समझ में आना चाहिए। बात क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आया? यस सर। Good. चलिए. So it is already, we are already 3 minutes over. So I am winding up the today's session here only, beta. So that's all.